Hello friends, how are you? Welcome to your own channel HSC Training Guide. I am HSC trainer Mohammad Murshid Alam. Today we learn some important information about carbon monoxide which is asked in safety related interview. So watch the video completely, otherwise you will not understand. So let's start the video. CO gas यानी कार्बन मोनोऑक्साइड. Carbon monoxide is a colorless, odorless gas that is harmful to human health. It is produced by the incomplete combustion of carbon containing fuels such as gasoline, natural gas, coal, and wood. Common sources of carbon monoxide emissions include motor vehicles, residential heating system, gas stove, and fireplace. When inhaled, carbon monoxide bind with hemoglobin in the blood more effectively than oxygen, reducing the blood ability to carry oxygen to vital organs and tissue. मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. यह कार्बन युक्त ईंधन जैसे गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, कोयला और लकड़ी के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है. कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के सामान्य स्रोतों में मोटर वाहन, रेसिडेंशियल हीटिंग सिस्टम, गैस स्टोव और फायरप्लेस. जब सांस ली जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से बंध जाता है, जिससे ब्लड की ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण अंगों और ऊतकों यानी वाइटल ऑर्गन्स एंड टिश्यू तक ले जाने की क्षमता पावर कम हो जाती है. इससे निम्न लक्षण हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, नौसिया एंड इन सेवरल केसेस कैन बी फैटल टू प्रिवेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. It is crucial to ensure proper ventilation when burning fuels indoor and to install carbon monoxide detector in homes. This detector can alert occupant to elevated carbon monoxide levels before they reach dangerous concentration. Regular maintenance of heating system and appliance is also important to minimize the risk of carbon monoxide production. यानी सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मतली और गंभीर मामलों में घातक हो सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को रोकने के लिए घर के अंदर ईंधन जलाते समय उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना और घरों में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाना महत्वपूर्ण है. ये डिटेक्टर खतरनाक कंसंट्रेशन तक पहुंचने से पहले रहने वालों को बढ़े हुए कार्बन मोनोऑक्साइड स्तरों के बारे में सचेत कर सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादन के जोखिम को कम करने के लिए हीटिंग सिस्टम और उपकरणों का नियमित रखरखाव भी महत्वपूर्ण है. Carbon monoxide is a gas that poses significant health risk, and its behavior regarding lower explosive limit and upper explosive limit is critical for safety in various environments. मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है और निचली विस्फोटक सीमा लोवेस्ट एक्सपोजर लिमिट और ऊपरी विस्फोटक सीमा अपर एक्सप्लोसिव लिमिट के संबंध में इसका व्यवहार विभिन्न वातावरण में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. LEL लोवेस्ट एक्सपोजर लिमिट. This is the minimum concentration of carbon monoxide in the air that can ignite and cause an explosion when exposed to an ignition source. For CO, the LEL is approximately 12.5% by volume in air. This means that if the concentration of carbon monoxide is below this level, it will not burn. Means LEL हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की न्यूनतम कंसंट्रेशन है जो किसी इग्निशन स्रोत के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो सकती है और विस्फोट का कारण बन सकती है. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए LEL हवा में आयतन के हिसाब से लगभग 12.5% है. इसका मतलब है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन इस स्तर से कम हो तो यह जलेगी नहीं. UEL अपर एक्सप्लोसिव लिमिट. दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर दैट कैन स्टिल इग्नाइट. द UEL फॉर CO इज अराउंड 74% by volume in air. If the concentration exceeds this level, there isn't enough oxygen present to maintain combustion. Understanding the LEL and UEL is essential, particularly in industrial environments, to avoid explosive situations. Proper monitoring and ventilation are necessary to ensure CO level remain within safe limit and to prevent the accumulation of the hazardous gas. मीन्स अपर एक्सप्लोसिव लिमिट. यह हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकतम कंसंट्रेशन है जो कभी भी आग पकड़ सकती है. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए UEL हवा में मात्रा के हिसाब से लगभग 74% है. यदि कंसंट्रेशन इस स्तर से अधिक हो जाती है तो दहन यानी कंबशन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं है. विस्फोटक स्थितियों से बचने के लिए विशेष रूप से औद्योगिक वातावरण में LEL और UEL को समझना आवश्यक है. Safe level of carbon monoxide. The safe level of carbon monoxide exposure are typically defined in terms of parts per million
over a specific time period. Here are the general guidelines for safe CO level. यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जोखिम का सुनिश्चित स्तर आमतौर पर स्पेसिफिक समय अवधि में प्रति मिलियन भागों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। यह सुनिश्चित CO स्तर के लिए सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर वर्कप्लेस इन्वायरमेंट OSHA सेट द परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट टू 50 ppm ओवर एन 8-hour वर्क शिफ्ट। यानी कार्यस्थल के वातावरण के लिए OSHA ने 8 घंटे की कार्य पारी में स्वीकार जोखिम सीमा 50 ppm निर्धारित की है। EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फॉर द जनरल पब्लिक द EPA हैज स्टेबलाइज्ड आउटडोर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। द रिकमेंडेड लेवल आर 9 ppm ओवर 8 hours एवरेज एंड 35 ppm ओवर 1 hour एवरेज। उसी तरह नियोस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार 10 घंटे के कार्य दिवस के लिए 35 ppm की समय औसत एक्सपोजर सीमा और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर 50 मिनट तक के लिए 200 ppm सीमा की सिफारिश करता है। हेल्थ इफेक्ट एट 50 to 200 ppm माइल्ड सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस एंड नोसिया कैन occur at 200 to 400 ppm more severe symptoms and increase risk of life threatening effects। मीन्स 50 to 200 ppm पर सिर दर्द, हेडेक, चक्कर आना और मतली आना जैसे हल्के लक्षण हो सकते हैं। 200 से 400 ppm पर अधिक गंभीर लक्षण और जीवन धमकाने वाले प्रभाव का जोखिम बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेफ्टी रिलेटेड वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।